MBBS. MBBS is not just a word, but it is an emotion. Everyone wants to get into MBBS, and people who are into MBBS, this one is actually for you. If we just close our eyes and visualize our MBBS life, it was really fun, enjoyable, and doing a lot of things. But it doesn't mean that we did not have mistakes. We did not have our own lessons. We had a lot of share of a roller coaster life. And so today we'll be actually discussing top 5 mistakes, top 5 lessons which you shouldn't do in MBBS. So hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. And welcome back to Dr. Duo. It is about quality over quantity. Whenever we enter an MBBS college, हमें ये लगता है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, हम बहुत फेमस होंगे, हमारा एक 50 लोगों का ग्रुप होगा, मे बी लाइक 20 people का ग्रुप होगा, एंड लेटर ऑन इन फर्स्ट ईयर में होता भी है, पूरा बैच आपका दोस्त होता है, एग्जैक्टली, ग्रुप भी 50 तो ये होता है कि तुम फेमस और पॉपुलर बनोगे, क्योंकि दिस इज हाउ वी सी इन करण जौहर's मूवी, राइट? But then reality is way too different from this. When you exit MBBS college, you're actually left with 1 or 2 friends. So what you actually have to focus on is that you have to see the quality of friends, not the quantity of friends. You have to vibe with people, you have to make friends, those who you can vibe with, those who you find your positive side coming out. So this is what is the lesson number 1. सिर्फ ऐसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जिनके साथ गेड़ी मार ली या यू आर जस्ट शेयरिंग योर जॉय. इट्स एक्चुअली यू शेयर योर लाइफ in MBBS क्योंकि you are away from your family, right? These friends are your family. So sorrow, joy, everything, even the minute details से लेकर सब कुछ आप शेयर कर रहे होते हो यार. तो बॉन्ड इतना डीप तभी हो सकता है जब आप दोनों की ट्यूनिंग इस तरह हो. तो बहुत सोच समझ के करना होता है. By the end of the first year हम रियलाइज करते हैं ये चीज डेफिनेटली, बट अगर आप पहले से माइंडसेट लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फेयर बेटर इन दैट. लेसन नंबर 2, Don't let relationships downgrade you. Well, once you are into MBBS, उस समय आप just 18 क्रॉस किए होते हो. Your hormones are certainly at the peak, and definitely you are like looking out for the partner. And मतलब आप बहुत desperately ढूंढ रहे होते हो. Again here, Karan Johar's movies are what to be blamed for. Exactly. But well, you should always remember कि यार you have entered a professional course, and that too which is one of the toughest courses of the world, MBBS. And again you have one big exam after 5.5 years, that is NEET PG. But I have seen many people जो इतने अच्छे से स्टार्ट कर रहे होते हैं, they start their MBBS in such a high note, they are toppers, they are so good, but रिलेशनशिप में आने के बाद या लड़की के चक्कर में आने के बाद इवन आफ्टर ब्रेकअप्स they actually destroy their lives. They come into bad habits, सब दुनिया भर का सुट्टा गांजा everything you can imagine, और या तो वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, they start taking antidepressant pills, and some become so desperate कि वो क्या लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं. Then always remember यार, MBBS में ट्रू लव नहीं होता है, इट्स मोर ऑफ इन्फैचुएशन. जस्ट बिकॉज आपकी वो एज ऐसी है, यू आर ब्रिमिंग विद द हार्मोन्स, सो दैट इज मोर ऑफ इन्फैचुएशन, नॉट ऑफ ट्रू लव. तो ऐसा नहीं यार, अगर सबके साथ सबका रिलेशनशिप इज नॉट सक्सेसफुल, राइट? सबके अंदर कोई ना कोई हार्डशिप्स आएंगे, बट दैट शुड नेवर एवर अफेक्ट योर प्रोफेशन. इन द एंड यार, आप जब MBBS से निकल लो, यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. एकदम पढ़ाई में टॉप होना चाहिए. एंड अगेन अगर आपका करियर उसकी वजह से अफेक्ट हुआ, देन सामने वाला तो निकल जाएगा यार, आप वहीं के वहीं रह जाओगे. इट विल डिस्ट्रॉय योर होल फैमिली, नॉट ओनली यू, योर पेरेंट्स लाइफ ऑल्सो, जो इतना मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुंचाए हैं. So don't let it affect you. Lesson number 3, it's about addiction. So addiction is something which is very common if you enter any medical college, be it a government one or a private one. But this is something which you have to stay away from. If you have this thought कि यार अभी तो कॉलेज में घुसे, एक बार ट्राई कर लेती हूँ, एक बार ये कर लेती हूँ, but believe me, this whole try thing only leads you towards weekly, towards bi-weekly, towards alternate day, and then daily का system बन जाता है. So this is one thing which you actually have to avoid. In colleges you would get a lot of temptations, not just related to drinking or smoking, but to things which are just not easily mentionable too. But you have to resist that temptation of trying. I would just say trying, don't go for trying itself. And then you would see that कितने लोग कैसी लाइफ में घुस जाते हैं जब ये सब करने लग जाते हैं. लाइक गुड अमेजिंग लाइफ, अपना इतना अच्छा इंटेलेक्ट
सब कुछ भूल के वो सिर्फ इसमें घुस जाते हैं, एंड यू आर द वंस हु आर जस्ट सेफ एंड कम आउट सेफली टू। एंड लोग बहाना देते हैं इतना ज्यादा प्रेशर था कि मुझे करना पड़ गया। अरे क्या प्रेशर है यार, सब करते हैं ये कोर्स। ऐसा तो है जो एमबीबीएस क्लियर किया सबको सब कुछ ना कुछ सुट्टा लेके ही वहां तक पहुंचे हैं। दीज आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेस। एंड यही चीज आपको पीयर प्रेशर दे देती है कि फ्रेंड आपको ये बोलते हैं इतना प्रेशर है, ले ले दो, सब प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्या प्रेशर, घंटा प्रेशर, कुछ प्रेशर नहीं होता यार, ये सब सिर्फ माइंड का खेल है फालतू का। डोंट गेट इनटू दिस। लेसन नंबर 4, हॉबी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वेल वी आर नॉट सेइंग कि आप एमबीबीएस में आए हो तो आप सिर्फ नर्ड बन जाओ एंड दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते रहो। नो, दैट्स नॉट ट्रू। सबका एक खुद का पैशन होता है या कोई एक हॉबीज होती है। कुछ लोग को स्पोर्ट्स पसंद है, सम लाइक म्यूजिक, कल्चरल, व्हाटएवर। डेफिनेटली परस्यू दैट। सी 24 hours, it's I mean huge amount of time. If you learn to divide it properly, आप अपने सारे lectures भी अच्छे से कर लोगे. You will take out time for your self study also, for your NEET PG preparation also, and then also you will be left with so much of time जहाँ पे आप अपनी hobby या passion pursue कर सकते हो. Be it being into YouTube, social media, whatever you want here. And this is the reason why we actually started with this channel of breaking this conventional thought of people doing medical or MBBS being nerds. So that is just not true. It is all about managing your time. It's all about setting up your priorities and then following them. And also, I mean, you can take a chill pill यार. आपने दिन भर बहुत अच्छी पढ़ाई करती है. You can certainly hang out at night. I mean, go for a movie and go out for a dinner. See, just learn how to break your time. यार, I'm not saying कि पढ़ाई मत करो. 4 से 5 घंटा आप इनिशियली फर्स्ट ईयर से अगर पढ़ रहे हो, then that's good. पर डे के हिसाब से 4-5 घंटा बहुत अच्छा है फर्स्ट ईयर में. 24 आवर्स में आपने 5 आवर्स पढ़ लिया, 8 घंटा कॉलेज कर लिया, 6 घंटा सो लिया. स्टिल आपके पास 5-6 आवर्स बचेगा ना दिन का. वो कहाँ जाएगा यार? You can utilize that in going outside, pursuing your hobby, whatever you want. Just learn how to break that time. Point number 5, a very important one. Persistence, perseverance, dedication. See, कई लोग ऐसे भी होंगे जो MBBS इस समय में भी प्राइवेट से कर रहे हो या उनको वो कॉलेज ना मिला हो जो उनका ड्रीम कॉलेज हो, राइट? वी वर ऑल्सो वन ऑफ दोस्त. हमने अपने MBBS नहीं किया था गवर्नमेंट से, बट उसके बाद यार एक जो होता है ना स्पार्क इग्नाइट हुआ. सी, if you do it once it's a mistake, if you do it again and again that means you are doing it purposely. That's a choice. Yeah, exactly. तो वो फर्स्ट टाइम मिस्टेक थी, बट दैट एक्चुअली कुछ हुआ ना दिमाग में, आतामाजी सटकली वाली चीज हो गई. फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ इतना ज्यादा डेडिकेशन एंड वो आ गया था. व्हेन आई एंटर्ड माय MBBS आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड विद वॉल्यूम 0 एंड वॉल्यूम 1 ऑफ BDC चौरसिया. सो जहाँ पे जब मेरे कलीग्स वॉल्यूम 0 पढ़े होते थे, आई यूज्ड टू स्टडी वॉल्यूम 2. बट वो कहाँ से आया यार? एक बार फेलियर देखने के बाद आया यार अब मुझे दोबारा ये नहीं करना है. उसके बाद आई बिकेम सो सिंसियर. आई वाज ऑलवेज इन टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज एंड मेरा शुरू से ही नीट PG की तरफ माइंडसेट था. आई हैड जॉइंड माय कोचिंग इन सेकंड ईयर ओनली. प्लस as I told, I was never a nerd, but मेरा हमेशा फोकस ये तो रहता ही था यार मेरी पढ़ाई इफेक्ट होनी चाहिए. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं 4 से 5 फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे एंड फाइनल ईयर तक आते आते 6 to 8 आवर्स स्टडीज पर डे करूँ ही करूँ, बाकी जब कुछ इफेक्ट हो चाहे ना हो. सो आपके अंदर भी ये थॉट होना चाहिए यार. आप किसी स्टेज पे भी आए हो, कैसे भी आए हो, यू हैव दीज 4.5 years टू कम्प्लीटली टर्न योरसेल्फ इनटू अ टॉपर और इनटू अ वेरी गुड स्टूडेंट. एंड ऑल्सो सी यार, अब आप MBBS में घुस गए हो, बट ट्रस्ट मी सिर्फ MBBS करके आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बिकॉज आगे जाके PG करना इट्स वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस प्रोफेशन. आपको सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक जो भी ब्रांच लेनी हो आपको लेना ही पड़ेगा. एंड दैट यू नीड टू डू इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, क्योंकि पेशेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में ही आते हैं. एंड PG इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एक्सपोजर. PG का आप कैसे क्रैक करोगे? अगर आपका MBBS का बेस स्ट्रॉन्ग हुआ है तो. एंड MBBS का बेस तभी स्ट्रॉन्ग होगा यार अगर वो क्वालिटीज जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करी आपके पास है. सो डोंट फॉरगेट दैट स्टडीज. आपका मेन पर्पस वो था, वो ही मेन है, वो तो करना ही करना है. उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो जो करना है करो. Exactly. So it's like all time studies make a Jack a very dull boy kind of, जो भी idiom बहुत famous है. So it is just, MBBS is just about balancing your studies and your extracurricular activities in a nice manner. And if you do, believe me, MBBS will be the easiest and the most enjoyable time of your own life. So yeah, this is it for today's video. We hope that our 5 lessons really help you in dealing with MBBS further. So till then, bye everyone. Do not forget to subscribe to our channel. Let's make this channel the biggest medical community ever, because Bachelor medicals are all fun. Bye Bye. guys. Lesson number 2. Don't let relationships. पापा यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा है. Breaking news. Lesson number 2. Don't. इतना भी सॉफ्ट नहीं होना था. चलो. Lesson number 2. Don't let. शुरू हो गया. ना सेकंड शुरू हो गया नाटक वाला. Lesson number 2. Don't let अब relationships. देखा, अब किसने किया नाटक? किसका शुरू हुआ?